So we were talking about the ozone, children, where I have told you that ozone is present in the stratosphere. Stratosphere क्या होता है? 12 kilometer to 50 kilometers, isn't it, above the sea level. Now the region of this place, children, when we talk about this region, region is also called as ozonosphere. Ozonosphere इसलिए बोलते हैं क्योंकि ओजोन प्रेजेंट होता है, isn't it? Ozone, I have told you, children, is deadly poisonous, and at the ground level it is quite poisonous. Okay, so ozone is formed. कैसे form होता है ये आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है. Ozone is formed with the result of photochemical reaction. Photochemical reaction क्या होता है? जैसे ओजोन है, एक एटम ऑफ ओजोन है, जो ओजोन होता है वो स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. जैसे आपका O2 है, O2 स्प्लिटिंग व्हाट हो रहा है? O2 होके O1 O1 मतलब एक एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन. और ये जो स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन, इट कंबाइंस विद O2, चिल्ड्रन, एंड फॉर्म्स O3. फाइन. सो जो ओजोन लेयर है बेसिकली इट इज प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरमेंट. ओके, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोटेक्टिव लेयर. इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द अर्थ. Okay, and what it is doing, children, it is absorbing the harmful rays of the sun. ये harmful rays कौन से हैं? UV rays हैं. Okay, which are called as ultraviolet rays, which are the radiations from the sun. So ये जो protective layer है, ये जो living organisms को, it is helping us from preventing us from health hazards. जैसे कोई भी skin cancer है, cataract है, या immune system भी है, ये सब अगर ozone layer चला जाएगा तो क्या होगा? It's going to affect us. So you can as well imagine that ozone is protecting us from the ultraviolet rays of the sun. अगर ozone ही affect होगा तो क्या होगा environment में? The decline of ozone layer will in fact thicken. It's the thickening in the Antarctica, which was also discovered, children, and they found that there is an ozone hole. ओके, 1985 में इसको डिस्कवर किया गया था कि ओजोन इतना खतरनाक है कि अगर इसका डिप्लीशन होगा तो देयर इज अ ओजोन होल आल्सो. सो यू कैन इमेजिन, चिल्ड्रन, इफ दिस हेल्थ हजार्ड्स, लाइक if the human beings are not protected by, because this ozone layer is not there, then there can be health hazards, like they can be skin cancers, they can be cataract, they can be immune system weaken हो जाएगा, plants destruction हो जाएगा. Okay, all these things can happen because of the depletion of the ओजोन लेयर. अब हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं? हमें तो ओजोन लेयर चाहिए ही चाहिए, बिकॉज ओजोन लेयर के बगैर तो हम बीमार पड़ जाएंगे, isn't it, children? तो अब हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हम थोड़े स्टेप्स ले सकते हैं. इसमें हम यूज करते हैं एक्सेसिव यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs. आपको एग्जाम में पूछेगा CFCs क्या है. ये एक सिंथेटिक इनर्ट केमिकल है, ठीक है. ये क्या होता है? जैसे आपके रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हो तो देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्रियोन. ओके, FREON. ये जो है रेफ्रिजरेंट में यूज होता है, एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है. ओके, दे ऑल आर कॉजिंग CFCs, फ्रियोन्स, एंड दे आर ऑल कॉजिंग. हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करते हैं, एसीज कितने यूज करते हैं, isn't it, children? They are all causing ozone depletion in the atmosphere. So a single chlorine can destroy up to 1 lakh of ozone molecules. Can you believe it? And who told this? UNEP. यूनेप क्या है पता है ना? यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रोग्राम. ये भी आपको एग्जाम में पूछेगा, व्हाट इज यूनेप. ओके चिल्ड्रन, सो दे डिड एन एक्सेलेंट जॉब एंड दे आर द एग्रीमेंट दैट टू फ्री CFC प्रोडक्शन. अब स्टॉप करना है CFCs. और यू ऑल दिस कंट्रीज, चिल्ड्रन, नाउ दे हैव एग्रीड कि हाँ बाबा, हमें एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, as an environment friendly person, we have to stop all this. So अब आजकल आप पता करो अपने से गूगल एंड फाइंड आउट कि व्हाट आर वी यूजिंग इन आवर refrigerants, okay, or what are we using in our ACs. So this is what is very very important. Ozone has to be protected in order to prevent all these problems. Now एक biological magnification I have just now explained, children, वो भी आपको एग्जाम में आ सकता है. That is, these are the pesticides I have told you that how they are entering into the food chain. Okay, so that is called biological magnification. The increase in the concentration of the harmful chemical substances like pesticides in the body of the living organisms at each trophic level is called biological magnification. जैसे deer, grass है, grass, deer, lion. So जैसे जैसे ये खाते जाएंगे ऊपर का लेवल बढ़ते जाएगा, तो मैक्सिमम लेवल, सो द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडीज, क्योंकि सबसे ऊपर वाला लेवल पे हम लोग आते हैं. सो अगर हम लोग खाएंगे तो ये सब हो जाएगा. अब
हम गार्बेज घर पे कैसा डिस्पोज करेंगे, इंडस्ट्रीज का गार्बेज कैसा डिस्पोज करेंगे. सो गार्बेज डिस्पोजल इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइज इन रैपिड दिस कंज्यूमर गुड्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, दे आर कॉजिंग अ मेजर प्रॉब्लम इन आर कंट्री. आप देखो, हर थोड़े दिन हमारे पास अमेजोन के पैकेट्स आ जाते हैं, हर थोड़े दिन ना. इंडिया हैज बिकमिंग सो बायर कंट्री, मतलब कुछ ना कुछ खरीदने की आदत हो गई है हमें, isn't it children? So we are collecting so much of waste, so much of disposable waste we are collecting, and all this, some are biodegradable, some are not. So जब आप ऐसे करोगे तो क्या होगा? You have to find out certain methods of waste disposal. Okay children, so these methods of waste disposal depends upon the nature of the waste. कैसा वेस्ट है, आप कैसा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो. जैसे आप लोग क्या करते हो, होट कर लेते हो. हाँ, एक एक घर में 5-5 लैपटॉप्स, एक एक घर में इतने सारे सारे गैजेट्स है हमारे, बट वो खराब हो जाएंगे तो कहाँ डिस्पोज करेंगे आप? देयर हैज टू बी सम वेस्ट, इजंट इट? मेटल्स हैं, ग्लास है, पेपर है, कूड़ा है, इतना है तो हमें उसका नेचर पता करना चाहिए कि कैसे टाइप का है और किस टाइप का है. अगर आपका बायोडिग्रेडेबल है चिल्ड्रन तो आराम से डिस्पोज हो जाएगा, बट जो दूसरा है तो कैसे होगा? देयर हैज टू बी सम वे. The first way is called as incineration. That means children, the burning of waste at very high temperature, okay, to form ash is called incineration. This process is carried out in a machine. This is called as incinerator. Okay, इसमें क्या करते हैं, आपके जो भी हाउसहोल्ड वेस्ट है वो केमिकल, बायोलॉजिकल सब उसमें डाल दिया और पूरा जला दिया उसको. उसमें धुआं नहीं होता है, याद रखना, इसमें धुआं नहीं होता है, बट उसमें वेस्ट प्रोड्यूस होता है, एश वेस्ट प्रोड्यूस होता है. ओपन डंपिंग, ये तो हमारा कन्वेंशनल मेथड है. हमारे कंट्री में हम लोग बहुत फेमस है कि कूड़ा आया कहीं पर डंप कर दिया, इजंट इट चिल्ड्रन? तो आप देखो हर बड़े बड़े सोसाइटीज के आगे भी कूड़ा डंप करने की हमें आदत होगी, बट ये ओपन डंपिंग इज अ कन्वेंशनल मेथड. बट ये चीजें इट्स नॉट गुड इन सेलेक्टेड एरियाज, टाउन्स एंड ऑल. They what they do, they collect, but they are causing pollution children. You know, you don't like the open conventional system these in. And landfillings, मैंने आपको अभी पहले शुरू की चैप्टर में बताया था. landfillings, waste are dumped in low living areas, जहां पर लोग नहीं रहते हैं ना, वहां जाके लोग कूड़ा फेंक देते हैं. वहां पर जाके ये सब ट्रक्स में भर के जो कूड़ा आता है वहां जाके डंप कर रहे हैं. उससे क्या हो रहा है? इतने ईगल्स एंड इतने वल्चर्स, यू विल फाइंड ऑल ऑफ देम. सो द बेस्ट इज कंपोस्टिंग. कंपोस्ट करो, ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट करो, वर्मी कंपोस्ट करो. आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेजेस में, आपके ऑफिस में आजकल कितनी वर्मी कंपोस्ट, रिसाइकलिंग, जो चीज रिसाइकल होती है उसको रिसाइकलिंग में डालो. अगर न्यूज़पेपर्स आपके पास कलेक्ट हो, सेंड इट फॉर रिसाइकलिंग. मेटल्स हैं, प्लीज सेंड इट फॉर रिसाइकलिंग. सो ऑल दीज थिंग्स चिल्ड्रन वी हैव टू अंडरस्टैंड. एंड द बेस्ट थिंग इज टू reduce, रीयूज एंड रिसाइकल. 3 R's जो हमने पढ़ा है, इसलिए. और आजकल एक और आ गया है विच इज कॉल्ड एज रेफ्यूज. सो प्लीज अडॉप्ट दिस पॉलिसी ऑफ 4 R's: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रेफ्यूज. मत लो, बेटर है नॉट टू टेक. अगर कोई आपको बोलता है कि यार पैकेट में डाल के दो, नहीं नहीं, ठीक है, हम बैग लेके जाएंगे, हम बैग में ले आएंगे सामान, ठीक है. सो दिस इज द वे चिल्ड्रन वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट. So hope you enjoyed the chapter. Learn well. This is a 5-marker question and I expect all of you to score 5 for environment. Thank you.